Hello everyone, your friend Saloni Agrawal welcome you all in my class. As you all know, I am teaching business studies right now, which is a theoretical subject. Many students feel problem to retain the theory, but now be happy because I am here, so there is no need of fear. Guys, be with me. My videos definitely encourages your learning skills. This is the third video of chapter first. My previous two videos already discussed some topics. I hope you all gone through with that already. Please watch regularly for concept understanding. Guys, one thing more I want to tell you, please watch complete video. Only that you will able to understand the topic clearly. As I told you in last video about today's topic, that is objective of business. Guys, objective of business is not only the topic of your syllabus, it will help out you in your real life also. Objective of business, or you can say objective of anything, whatever you are doing in your life, any study or any any business, any service or anything you can do in your life, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करना बहुत ज़रूरी है. किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसका गोल सेट आउट करना, उसका एंड रिजल्ट सेट आउट करना, व्हाई वी आर डूइंग दैट, फॉर व्हाट वी आर डूइंग दिस, ये सब चीज़ें इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वेल, नाउ लेट्स स्टार्ट about the today's topics what we have to discuss today. Objective of business, which can be further divided into three parts: economic objective, social objective, human or individual objective. Second one, role of profit in the business. Now let's start with the objective of business. Guys, what the word objective emphasis, it's all about ending. Basically, objectives are the end results or which the activities of the business are directed. Means गोल्स, या फिर कह सकते हैं कि मतलब आप कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करो तो उसके पीछे एक गोल सेटअप होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्पेसिफिकली होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सिर्फ जनरली ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दे कि इंक्रीज इन सेल होनी चाहिए, या फिर वो एक स्पेसिफिकली कहे कि इंक्रीज इन सेल बाय 10% होनी चाहिए, आपको क्या लगता है विच वन इज़ मोर बेटर? ऑब्वियसली स्पेसिफिक वन. तो इसीलिए फर्म को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही सेट करना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है. कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं काम करता है. दे हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव. ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज अर्निंग प्रॉफिट. आप सबको पता है अर्निंग प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव, but it's not the sole objective, or it's not the only objective of business. That's why only business objectives further classified into three parts: economic, social और human act. Well, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. वैसे ही सिमिलरली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिज़नेस हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सर्वाइवल है, प्रॉफिट है और ग्रोथ है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है टू सर्वाइव, टू एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर लॉन्ग टाइम, एंड इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन दे आर एबल टू अर्न द प्रॉफिट. प्रॉफिट तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट इज ऑल्सो द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क. आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रोथ. कोई भी बिजनेस वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली ग्रोथ के लिए कर रहा है. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़. इन which terms? In what terms? Terms of sales, number of branches, number of products, etc. So these all are the economic objectives through which business can earn a adequate amount of profit, or businessmen can achieve the economic objectives. Next, social objectives. Social objectives basically deal with the commitment of business towards the society. Why? Because business is the integral part of the society. हम अपनी सोसाइटी में कोई भी रिसोर्सेज हम यूज़ करें तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के कर रहे हैं. अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो वो हम अपनी सोसाइटी के मेंबर्स को ही प्रोडक्ट सेल कर कर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली एक बिजनेसमैन की ऑब्लिगेटली ड्यूटी बन जाती है कि वो कुछ करे. The businessman do something for the society. Okay, तो
क्या कर सकता है एक बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए? कंज्यूमर्स क्या हमारे प्रेफर करते हैं? कंज्यूमर प्रेफर करते हैं कि वो प्रोडक्ट्स खरीदें जो सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी के हों और अवेलेबल हों रीजनेबल प्राइस पे। आज का कंज्यूमर टुडेज कस्टमर इज़ अ क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर। दैट्स वाई businessman must prefer or businessman must supply products with right quality at a right price to supply of desired quality of product. Secondly, in today's market many types of unfair trade practices are involving, for example black marketing, adulterations, holding, overcharging. तो ये सारी एक्टिविटीज़ पर स्टॉप लग जाना चाहिए। अगर कोई भी बिजनेसमैन ये सारी एक्टिविटीज़ को, इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है तो ना ही वो सिर्फ अपनी रेपुटेशन को लूज़ कर रहा है, बट इट इज़ पनिशेबल अंडर लॉ ऑल्सो। तो दैट्स वाई बिजनेसमैन मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड दीज प्रैक्टिसेस, दीज अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ओके, थर्ड, employment generation. We all know very well unemployment is a major problem for every society. So the businessman must create employment opportunities by providing trading, by upgrade the knowledge of their employees, by fulfills the demand of the jobs, etc., etc. Okay. Next, social service. A large business undertake various projects of community service such as रनिंग चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारी सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विसेज है। अगर हम चैरिटेबल कोई भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ये सब कुछ कंडक्ट करते हैं तो मीन्स हम अपनी सोशल सर्विसेज के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। लास्ट, अवॉइडेशन ऑफ पॉल्यूशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक बिजनेसमैन को नहीं, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें अपनी सोसाइटी में रहना है और हेल्दी रहना है तो हमको पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशंस, इंडस्ट्रीज थ्रो ड्रेन्स वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनीज। ठीक है, बिजनेसमैन ऑल्सो एडिट स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशंस। तो इट इज़ द मॉरल ड्यूटी ऑफ बिजनेसमैन टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ pollution. Not only businessmen, remember we all of you take initiative to control the pollution also. Businessmen must adopt environment friendly techniques. Okay, हम सब भी environment को neat and clean रख सकते हैं। कैसे? plants को more and more grow करके। okay? तो सिर्फ businessman की ही ड्यूटी नहीं है, हमारी भी ड्यूटी है। always remember that. नेक्स्ट वन, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हमने एक बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस करता है तो वो क्यों करता है? ऑब्वियसली अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए। सोसाइटी में रहकर करता है तो उसका ऑब्वियसली उसके ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के टुवर्ड्स भी हैं। बट अपने बिजनेस में एम्प्लॉयज़ रख रहा है वो, तो उसका प्रायर ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखे। तो ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर ओनली दिस, means human or individual objectives are related to employees of the organization only. Okay, because employees are variable resources of the organization. तो now कैसे हम अपने employees का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं? by providing good working conditions to them. Okay, payment of competitive and satisfactory wages or salary to them. ओके, उनका पर्सनल ग्रोथ करके, उनका पर्सनल ग्रोथ कैसे करेंगे? हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, पेयर रिकग्निशन। पेयर रिकग्निशन मीन्स एम्प्लॉयज़ को इंकरेज करना, उनको रिस्पेक्ट देना। वो हम कैसे दे सकते हैं? उनको इनिशिएट करा कर। कैसे इनिशिएट करा के? उनको पार्टिसिपेट करा कर। कैसे पार्टिसिपेट करा के? कोई भी डिसीजन लेना है तो ऐसा नहीं है कि हम ओनर हैं तो अकेले ले लिया, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कीजिए उसमें। और ये चीज़ हम सिर्फ बिजनेस में ही नहीं और एज अ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ही नहीं, अपनी रियल लाइफ में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे काम वाले हमारे यहाँ काम करने आते हैं, जनरली डोमेस्टिक वर्क करने आते हैं, या प्रैक्टिकल लाइफ में आगे चलकर हम कहीं पे सर्विस करेंगे तो जो हमसे नीचे एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है, पेन है या और भी होते हैं हमसे छोटे लेवल पर एम्प्लॉयज़, या कहीं पर भी लाइफ में XYZ जो भी हमारे से छोटे लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं, हमें हमेशा उनको इंकरेज करना चाहिए। कैसे? उनका थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट उनके साथ लेकर। इट रियली गुड हैबिट। ओके,
तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव, वो सिर्फ हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे रियल लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, स्पेशल बेनिफिट्स भी हम उनको प्रोवाइड कर जा सकते हैं, जैसे कि हाउसिंग फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, उनके चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन है। तो दीज आर ऑल आर ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ओनली। ओके, नाउ नेक्स्ट, one thing more I want to tell you, objective of business is really very important topic। बेसिकली 5 मार्क्स तो आपको आई थिंक इससे कवर हो ही जाने हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपका मिला के आई थिंक 16 मार्क्स का वेटेज कवर करता है आपके एग्ज़ाम्स में। ये मैं आपको क्लियरली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बताऊंगी वेटेज कितना लेता है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हमारा 5 मार्क्स का आई थिंक कवर कर ही लेता है। ये आपका सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस लिखने के लिए भी आ सकता है कि एक्सप्लेन कीजिए पूरा 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, या फिर पर्टिकुलर कोई केस स्टडी दे देंगे और बताएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है, या पूरा एक्सप्लेन कीजिए उस ऑब्जेक्टिव को। तो इसलिए प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस आप लोगों को पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगेन एंड अगेन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, आई थिंक मुझे दोबारा बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अर्निंग प्रॉफिट मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ये सोल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, बट इसके फिर भी कोई रीजंस होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। मैंने पहले भी बताया, सर्वाइवल, ग्रोथ, ठीक है, परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज़ होती है। किसी भी बिज़नेस की जितना ज़्यादा वो एक्सपेंड होगा, ये हमें कैसे पता चलता है, जितनी ज़्यादा उसकी अर्निंग बढ़ेगी, जितने ज़्यादा प्रॉफिट लार्ज होगा, उसका कुछ पार्ट उतना ज़्यादा री इन्वेस्ट होगा, जितना ज़्यादा री इन्वेस्ट होगा वो एक्सपेंड होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट बियरिंग रिस्क के लिए, रेपुटेशन गेन करने में हेल्पफुल होता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आराम से ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, ठीक है। तो आप लोग इसको डीप स्टडी कर लीजिएगा। स्टिल अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ फर्दर। और अब जो हमारे टॉपिक्स नेक्स्ट स्टार्ट होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और लेंदी टॉपिक्स हैं। तो गाइस, जब तक आप ये तीनों वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, ये टॉपिक्स कवर कर लीजिए। ये बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई वॉन्ट टू गिव यू वन एडवाइस, प्लीज़ प्रिपेयर नोट साइड बाय साइड। मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में भी बोला था मेंटेन 1 सेपरेट कॉपी, आज फिर बोल रही हूँ, नोट साइड बाय साइड बनाते चलिए। ऑलवेज रिवाइज द की पॉइंट्स, इट विल रियली हेल्पिंग। मतलब आप अगर की पॉइंट्स को डेली रिवाइज करेंगे तभी आप रिटेन कर पाएंगे थ्योरी को प्रॉपरली। रीड एटलीस्ट ट्वाइस फ्रॉम योर बुक्स। मैंने पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा था, आज फिर कह रही हूँ, रीड एटलीस्ट ट्वाइस फ्रॉम योर बुक। Please watch the videos regularly, okay? Don't forget to press the like button, or you feel free to ask your query anytime. I am available. मैं कोशिश करूँगी 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करने का। Guys, one good news, और हाँ, मे बी bad news also for some students. Be ready for the revision test. Soon I will give you many questions, okay? Thank you for watching. Bye bye.